Namaskar, I Dr. Abhishek Tiwari again welcome you all at Exploring Concepts in Physics. In our earlier lecture, we have discussed about the basic concepts of interference in thin film, and now for today, I am going to take interference in wedge-shaped thin film. So what is wedge-shaped thin film? A thin film having surface inclined at an angle theta as shown in this figure, and the thickness gradually increases on moving away from point of contact O towards B. When such a thin film is exposed to monochromatic light, the interference occurs in between the rays reflected from the upper and the lower surface of this thin film. This interference gives us equidistant and parallel fringes. Whenever a white light is used here, we get colored fringes. So for today we are going to take the concept of this wedge-shaped thin films interference. Here we will derive what will be the condition for constructive interference and destructive interference, what will be the condition for obtaining a bright fringe and dark fringe, both in the cases of reflected rays as well as in terms of transmitted rays. So now let us start with the derivation. As I have talked about how to find the condition, I had discussed that we had to find the path difference between the rays. So if we see the path of this first ray, which is being partially reflected from point T, and this again the other ray is moving the distance from T to U and U to V. If we clearly examine that after this point V and X, which I had obtained by drawing an perpendicular on the first ray, after this point these two rays are covering or traveling same path in a same medium. Before this point T, the path was same. So the difference between the path here arises in this span of time. Suppose if we say that in a particular time, let capital T, the first ray travels a path of Tx and the second ray travels the path of Tu plus Uv. Now for that derivation of path difference, let us understand this figure also. This firstly, the monochromatic light of wavelength lambda is incident over this OA surface of wedge-shaped thin film. It is partially reflected and partially refracted. Then again from the lower surface it is reflected in the same medium. I have extended the normal of this surface and the normal of surface OB, which meets point at C. Then again a perpendicular is drawn on the first ray from point V and on the second ray from point V, and from point V also we have drawn this third perpendicular which is being extended, and the path of the ray, second ray Tu, is extended where these normal and this extended ray meets at point D. Now if we talk about the angles, what will be the angle? This angle is angle of incidence, this will the angle of refraction, this angle of reflection is also I, the remaining angle will be 90 minus I. This is a perpendicular, so this angle will be 90 degree. So this remaining angle of this triangle TVX is of I. Now in the second, if we see this triangle TY and U, TY and V, we will be getting that this angle is angle of refraction R, this is 90 degree, the remaining angle here is 90 minus R, so this angle of triangle will become R. If we talk about the
angles between the normal, since the surfaces are inclined at an angle theta, the normal will also be inclined at an angle theta. This is angle R, and this angle, if we talk about what will be this angle, then it will be the exterior angle of two opposite interior angles sum. That means R plus theta. Since this is normal to the surface OB and this is also normal to the surface OB, these two angles will be corresponding angles and will be equal. Again, if we talk about this angle will be equal to this, as this is the parallel lines and a transversal UV is cutting them. Then this R plus theta angle will be equal to this angle, because if parallel lines are cut by a transversal, the alternate angles are equal. So this was all about the figure. Now let us start with deriving the path difference. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कंडीशन इंटरफेरेंस की क्या हो। ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए हमारा, वो कितना हो, दैट मस्ट बी इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और डार्क फ्रिंज के लिए वी आर हैविंग द कंडीशन दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। अब हम अपना अगर पाथ डिफरेंस निकाल लें और इन कंडीशंस में हम पाथ डिफरेंस की वैल्यू को पुट कर दें, तो वी विल बी गेटिंग द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। सो लेट अस फाइंड द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहां से क्या दिखाई दे रहा है कि जितने टाइम t में पहली रे t से x एडवांस की है, उतने ही टाइम में सेकेंड रे t से u गई और u से v पॉइंट तक पहुंची है। तो इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें, पाथ ऑफ फर्स्ट रे विल बी व्हाट, tx, and the path of the second ray will be what, tu plus uv. This tu plus uv is path in medium, so I have changed this into path in air by multiplying with the refractive index of the medium mu. So the net path difference which we can write from this figure, वो कितना आता है हमारा, delta p is equal to mu times tu plus uv minus tx. Now let us find what this tx, tu and uv is. From trigonometry we will be having our path difference. So first of all, I have taken the Snell's law. What is Snell's law? Mu is equals to sin I upon sin r. If we see here, the sin I will be tx upon tv. And in this triangle TYV, sin r will be what? This is the perpendicular side TY, and this is TV, the hypotenuse of the triangle. So we can write sin r as TY upon TV. I have written this. Sin I will be equal to, from figure, TX upon TV, and sin r will be equal to TY upon TV. TV and TV are same. This will be cancelled out. Then we are having relation which implies that tx will be equal to mu times ty. Now again let us see this tu. We can break this tu into ty plus yu. And also one thing in common, if these two base angles are equal, if we imagine this triangle u, v and d, तो इस ट्रायंगल u, v और d में ये जो बेस एंगल्स हैं ये हमारे इक्वल हैं। इनकी वजह से ये जो साइड्स होंगे, कौन सी साइड, दिस साइड uv एंड दिस साइड ud, ये दोनों ही हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। इस वजह से हम अपने इस डेरिवेशन में uv की जगह पर इसे रिप्लेस कर सकते हैं एज ए ud. सो लेट अस पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ path difference which we have obtained from figure. So I have put here the value of tx. तो अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं tx की म्यू ty, और जैसा कि अभी हमने बताया tu को हम ब्रेक कर दे रहे हैं ty प्लस yu में, और ub को
सेम होने की वजह से यूडी के यूवी को रिप्लेस कर दिया यूडी से। ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट द फर्स्ट टर्म इज म्यू टाइम्स टी वाई प्लस म्यू वाई यू प्लस यूडी माइनस म्यू टाइम्स टी वाई। Mu times ty and mu times ty are having opposite sign, so this will be cancelled out, and uv plus ud from figure can be termed as a single straight side of a triangle, that is yd। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया uv plus ud को yd से। Now the path difference seems to be very easy। अगर हम yd को फाइंड कर लें तो फिर हमारा पाथ डिफरेंस तुरंत ही निकल आएगा। इस yd को निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, y से d और d से फिर v और v से y। सो दिस ट्रायंगल, जिसको हमने अपनी सुविधा के लिए अलग से भी बना लिया कि इन ट्रायंगल y, v एंड d, ये एंगल r प्लस थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो दिस विल बी द बेस ऑफ द ट्रायंगल yd एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, और VD जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और गौर करेंगे कि V से Z तक का जो पॉइंट था हमारा, उसकी थिकनेस क्या थी हमारी, इस फिल्म की थिकनेस D थी, और चूंकि ये ट्रायंगल आपका एक तरह से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दिस साइड और दिस साइड विल आल्सो बी इक्वल, और इस वजह से हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये जो T है ये ZD भी हमारा कितना होगा, t के ही बराबर। सो दिस टोटल हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल कैन बी रिटन एज 2t। नाउ वी आर हैविंग द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल एज 2t एंड वी हैव टू फाइंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो cos हम अगर यहां पर ले लें इस ट्रायंगल में तो हमें क्या मिल जाएगा, cos एंगल है हमारा r प्लस थीटा इज इक्वल टू, or we can write in triangle YVD। तो cos r plus theta is what, base upon hypotenuse, base is YD and hypotenuse is VD। अब हम VD की वैल्यू पुट कर दें और YD को हमें चूंकि कैलकुलेट करना है तो एक तरफ हम YD रखें, बाकी सारी चीजों को एक तरफ, तो इसको करने से क्या आ जाएगा हमारा, देखिए वैल्यू हमने जैसे पुट की yd की तो yd हमारा निकल कर आया 2t cos r प्लस थीटा। अब इस वैल्यू को यहाँ पार्ट डिफरेंस के जो हमारे सिंबॉलिक इक्वेशन है इसमें अगर हम पुट कर दें तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि yd अगर यहां पुट किया हमने डेल्टा p इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा। अब यहां पर हम जैसा चूंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो यहां पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टोक्स फेज चेंज का जो लॉ है कि व्हेनेवर अ रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस व्हिच इज द रेयरर मीडियम and the second was being reflected from the medium which is denser in comparison to the first one, then a phase change of phi is observed or a path difference of lambda by 2 itself appears. So that lambda by 2 I have subtracted from this path difference which we had calculated. तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस जो हमारा इन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में आ रहा है वो 2 म्यू टी कॉस r प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2। अब हमें सिर्फ इतना ही करना है कि इस इफेक्टिव पाथ डिफरेंस को हम यहाँ इक्वेट करेंगे फॉर फाइंडिंग द कंडीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। सो लेट अस फाइंड द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ऑब्टेनिंग अ ब्राइट फ्रिंज इन इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप्ड थिन फिल्म इन रिफ्लेक्टेड लाइट by condition of interference for bright fringe, delta p is equal to even multiple of lambda by 2. This delta p I have calculated putting value of effective path difference तो हमारा कितना आया 2 म्यू टी कॉस
आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई टू। ये हम लोगों ने अभी निकाला कि ये हमारा इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होगा, और इसी को हम लोग इक्वेट कर देंगे 2n लैम्डा बाई टू से। इसे रीअरेंज करें तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू। टेकिंग कॉमन हियर लैम्डा बाई टू, तो हमारा फाइनल जो रिलेशन आ जाएगा, फाइनल जो कंडीशन है वो हो गई 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 lambda by 2. So this is the condition for obtaining a bright fringe or constructive interference, or condition for maxima, or we can say for obtaining the maximum intensity due to the interference of these two waves. अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें तो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉर डार्क फ्रिंज अभी हम लोगों ने बात की थी कि ये हमारा जो पार्ट डिफरेंस है, या जो ये इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है हमारा यहाँ पर, ये किसके बराबर होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू के बराबर हो। तो इसे इक्वेट करते हैं, डेल्टा पी इफेक्टिव इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई टू। यहां पर हम लोगों ने कई बार लोगों को कंफ्यूजन आता है कि सर 2n माइनस 1 ले लें या 2n प्लस 1 ले लें। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी क्लियर किया था कि ये 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 दोनों ही ऑड है। अगर हम 2n प्लस 1 लेते हैं तो n की वैल्यूज जो यहाँ पर शुरू होंगी वो 0, 1, 2, 3 से हो सकती हैं, और अगर हम लोग 2n माइनस 1 ले रहे हैं एज ए ऑड मल्टीपल, तो यहाँ पर n की वैल्यूज 1 से शुरू होंगी, 1, 2, 3 वी कैन एज्यूम एनी वैल्यू। So let us put 2 mu t cos r plus theta minus lambda by 2 is equal to 2n minus 1, or we can expand this, open the bracket, 2n lambda by 2 minus lambda by 2. Again rearranging this, we get 2 mu t cos r plus theta बराबर हो गया 2n lambda by 2, और ये माइनस लैम्डा बाई टू उधर जाके प्लस लैम्डा बाई हो जाएगा, लैम्डा बाई टू। तो ये दोनों माइनस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू कैंसिल हो सकते हैं और हो ही जाएंगे, जिसकी वजह से हम इसको आगे नहीं लिखते हैं। तो ये हमारी कंडीशन हो गई फॉर ऑब्टेनिंग अ डार्क फ्रिंज इन इंटरफेरेंस ड्यू टू वेज शेप्ड थिन फिल्म। तो इतना करके हम लोगों ने कंडीशंस निकाली। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए अगर हम लोग बात करें तो रिफ्लेक्टेड रेज के लिए जो ब्राइट की कंडीशन आई वो निकल कर क्या आया कि 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई टू, और डार्क के लिए कंडीशन हमारी निकल कर आई 2 म्यू टी cos r plus theta is equal to 2n lambda by 2। अब अगर हम लोग जानना चाहें कि रिफ्लेक्टेड लाइट में ये केस निकल कर आया तो ट्रांसमिटेड रेज के लिए क्या होगा, तो हमें सबसे पहले ट्रांसमिटेड रेज का फिगर बनाना पड़ेगा। ये हो गई हमारी सरफेस OA, और इस सरफेस के बाद सेकेंड सरफेस हो गई OB। लाइट रे यहां पर इंसिडेंट होगी, जो कि थिन फिल्म है, तो यहां हम लोगों ने बात की थी कि पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी। हम रिफ्लेक्टेड रे को यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। रिफ्रैक्टेड पोर्शन को यहां अगर देखें तो वो इस तरह से यहां पर रिफ्रैक्ट होगा। देन अगेन द नॉर्मल ऑफ दिस सरफेस OB, यहां से इसका ये रिफ्लेक्शन होगा पार्शियली, और पार्शियली ये क्या होगा बाहर मीडियम में, पार्शियली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पार्शियली ये रिफ्रैक्ट हो गई। इस तरह से हम कहें तो ये रे क्या है, ट्रांसमिट हो। इसके बारे में अगर बात करें तो अगेन इट विल हैव अ इंटरफेस, यहां नॉर्मल से इसका रिफ्लेक्शन होगा
और इस रिफ्लेक्टेड रे का पाथ इस तरह से आगे बढ़ेगा। अगेन सरफेस OB पर जब ये इंसिडेंट करेगी तो यहां से फिर ये बाहर मीडियम में निकल जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे जो हमारा O था, O से इस पॉइंट तक आया, हमने इस पॉइंट को नाम दिया था यहाँ पर T। अब इसके बजाय हम लोग इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया था S और इस पॉइंट को नाम दिया था T। लेकिन हम लोग यहाँ T से देखें अगर तो पहली रे शुरू हो जा रही, तो पर्पसली हम लोग अपने डेरिवेशन को आसान करने के लिए यहाँ उस पॉइंट को नाम T देने जा रहे हैं जहां से रेज हमारी दो में टूट रहे हैं। तो हम इस पॉइंट को T कह रहे हैं जहां से ये टूटी। तो पहली रे जो आगे बढ़ी वो TX थी, तो यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, ये पॉइंट हो गया हमारा X। अब अगर हम बात करें कि ये दो ट्रांसमिटेड रेज हैं, तो इन ट्रांसमिटेड रेज में पहली रे का पाथ क्या है TX और सेकंड रे का पाथ क्या होगा, T से किस पॉइंट तक गई थी U, तो हमने इसको नाम दे दिया, ये पॉइंट हमारा U। और फिर U पॉइंट से कहां रे जा रही है, V। इस तरीके से यहां पर फर्स्ट रे का पाथ हो गया TX और सेकंड रे का पाथ हो गया TU प्लस U। तो जैसे हम लोगों ने पाथ डिफरेंस लिखना सीखा था वहां पर कि फिगर को देखकर मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो हम इसके पाथ डिफरेंस को कैसे लिख देंगे, म्यू टाइम्स TU प्लस UV। ये हो गया एक रे का पाथ माइनस, थोड़ा सा यहां रब कर देंगे इसके पोर्शन को, ये हो गया TX। तो ये हमारी होगी पहली इक्वेशन जो हमने फिगर से सांकेतिक रूप में एक इक्वेशन लिख ली पार्ट डिफरेंस की कि ये हमारे ट्रांसमिटेड रेज के बीच में आने वाला पार्ट डिफरेंस हो। अब अगर हम यहां पर फिर से वही काम करें, इस पॉइंट V से हम लोगों ने क्या किया था, पहले फिगर में तीन परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। एक पहली रे पर जो हमने कर दिया, दूसरा जो हम लोगों ने ड्रॉप किया है वो TU पर ड्रॉप किया है। तो TU आप देखिए कहां है, TU हमारा ये है, इस पॉइंट से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहे हैं हम किस पॉइंट पर, TU पर। और दूसरा परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉप किया है वो इस तरीके से नेक्स्ट सरफेस। तो यहां से अब हम अगर इसको आगे बढ़ाएंगे कहीं, तो इस तरीके से जो ये हमें पॉइंट्स मिले थे ये आगे मिलेंगे, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको इतना ही रखकर अगर देखना चाहें तो यहां से एंगल्स की अगर बात करें तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरीके से हमारा ये फिगर यहाँ पर हम ट्रांसमिटेड रेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके फिगर को देखें तो यहाँ पर पहली रे का पार्ट TX और दूसरी रे का TU प्लस UV, जिसका हम पार्ट डिफरेंस सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं म्यू टाइम्स TU प्लस UV माइनस TX। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पहले केस में इन वैल्यूज को निकाला था, उसी तरीके से सेम डेरिवेशन को अगर हम रिपीट कर दें तो हमारा पार्ट डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। और वहां पार्ट डिफरेंस आपने जैसा कि देखा था कि हम अगर इसमें वैल्यूज फिगर से देखकर पुट किए थे तो हमारे पास डेल्टा P निकल कर आया 2 म्यू T cos R प्लस थीटा। अब चूंकि यहाँ ये केस ट्रांसमिटेड रेज का है तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिटेड रेज में स्टोक्स के द्वारा बताया गया फेज चेंज का जो रूल है वो एप्लीकेबल यहां नहीं होगा, बोथ द रेज आर ट्रांसमिटेड रेज। तो सीधे यही हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया, जिसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 से फॉर ऑब्टेनिंग द कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो यहां पर अगर हम लोग ट्रांसमिटेड का केस निकालें, ट्रांसमिटेड रेज के लिए, तो आपने पार्ट डिफरेंस निकाला, अभी देखा कि कितना आएगा 2 म्यू T cos R प्लस थीटा। इक्वेशन नंबर हम इसे चाहें तो 1 दे दें ट्रांसमिटेड केस के लिए। इक्वेट करेंगे ब्राइट फ्रिंज को ऑब्टेन करने के लिए। ब्राइट के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी
कि हमारा पार्ट डिफरेंस डेल्टा पी इवन मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाई 2 का। इक्वेट करते ही हमें कंडीशन मिल जाएगी 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन हो गई फॉर ऑब्टेनिंग द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसे इक्वेट करना पड़ेगा विद ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू ऑड के लिए हमने मान लिया 2n प्लस 1 हमारा ऑड मल्टीपल हो गया, जहां n की वैल्यूज हम लोग 0 1 2 3 ले सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन आ गई डार्क फ्रिंज। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, जो कंडीशन रिफ्लेक्टेड लाइट में हमारी ब्राइट फ्रिंज को ऑब्टेन करने के लिए आई है, वही सेम कंडीशन ट्रांसमिटेड में आप देख रहे हैं डार्क फ्रिंज के लिए। और जो वहां डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है वो ट्रांसमिटेड में क्या है, ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ये था हमारा डेरिवेशन, जिसमें हम लोगों ने कंडीशंस को निकाला कि क्या कंडीशन होगी, इंटरफेरेंस कब कंस्ट्रक्टिव होगा, कब डिस्ट्रक्टिव होगा, बोथ द केसेस इन ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। और फिर हम लोग इसी चीज को कहते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। इसी चीज को हम दूसरे नाम से बताते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब हम लोग यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे कि ये जो फ्रिंजेस बनती हैं, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में बात की कि ये इक्विडिस्टेंट होंगी और पैरेलल होंगी। तो यानी दो जो कंसेक्यूटिव डार्क या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस हमारी होंगी, उनके बीच में, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क या दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, तो उसकी फ्रिंज विड्थ को हम लोग यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो फ्रिंजेस बनेंगी उनकी विड्थ क्या हो। एंड द सेकेंड थिंग विच वी वांट टू कैलकुलेट हियर द एंगल ऑफ दिस वेज। तो फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ को निकालने के लिए हम लोग एक फिगर यहाँ वेज शेप फिल्म को देख लेते हैं, जहां पर O क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सरफेसेस का, और ये वेज शेप फिल्म में जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये थीटा है। सपोज एट पॉइंट P हमें एक डार्क फ्रिंज मिल रही है, nth डार्क फ्रिंज। सो O से P तक की दूरी को हमने मान लिया कि xn हो गया, और पॉइंट Q पर हमें इसके जस्ट बाद वाले कंसेक्यूटिव नेक्स्ट डार्क फ्रिंज मिल रही, जिसको हमने दूरी को मान लिया कि xn+1। फिगर से अगर हम लोग ये देखना चाहें xn डिस्टेंस कितनी होगी, तो इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रायंगल अगर हम tan थीटा लें तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर T1 अपॉन बेस xn। तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई Tn इज इक्वल टू xn tan थीटा। और कंडीशन इंटरफेरेंस की अगर हम लोग देखें तो इंटरफेरेंस की कंडीशन है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। तो पहली फ्रिंज के लिए हम मान लें कि ये थिकनेस जो है T1, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 म्यू T1 कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। Tn की ये वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दें हम, तो इस तरीके से कुछ हमारा एक्सप्रेशन आ गया 2 म्यू xn tan थीटा cos r plus theta is equals to 2n lambda by 2. Similarly, for the next consecutive dark fringe which we are obtaining at point Q, the equation reduces as in place of xn we can put this xn plus 1. So 2 mu xn plus 1 tan theta cos r plus theta equal to 2n plus 1 lambda by 2. In place of n we have put n plus 1. Now here we are going to take assumption that for normal incidence, if these rays are normally incident over the surface OA, then angle I will be 0 and angle R will also become 0. So this R is now considered to be 0. Since this angle of wedge is a very small angle and almost it is tending to 0, so we can here assume that this cos r plus theta is almost tending to 0 and cos 0 is having a value of 1.
So we have replaced this by 1 and then subtracting these two equations, subtracting the equation number 2 from 3, we will get xn plus 1 minus xn is equals to lambda upon 2 mu tan theta cos r plus theta, where r plus theta was tending to 0, हमने उसे क्या मान लिया 1। तो यहां से ये जो डार्क फ्रिंज है xn प्लस 1 और उसके जस्ट पहले की जो डार्क फ्रिंज है xn, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसी पर हमारा क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगी। यानी जो हमने इसके बीच की जो डिस्टेंस निकाली है वही हमारी फ्रिंज विड्थ है, जिसको हमने बीटा यहाँ पर माना है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। अब यहाँ पर tan थीटा को हमने थीटा क्यों लिख दिया, क्योंकि फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैव नो प्रॉपर सिग्निफिकेंस देयर, सो tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। ये फाइनली हमारा फ्रिंज विड्थ आ गई। किसके लिए, अगर हमने दो डार्क फ्रिंजेस ली हैं और उनके बीच के सेपरेशंस को निकाला है तो ये ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हो गई। सिमिलरली अगर हम लोग इसी तरीके से इस डार्क फ्रिंज के बजाय कंडीशंस ले लें ब्राइट फ्रिंज की, तो उन दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन जो होगा वो एक डार्क फ्रिंज आएगी, और अगर हम निकालें यहाँ पर फिर से रखकर इन चीजों को तो वो इतनी ही आएगी। तो जो लेक्चर के शुरुआत में मैंने बात की थी आपसे कि ये इक्विडिस्टेंटली लोकेटेड होती हैं, दैट मींस द फ्रिंज विड्थ ऑफ दिस ब्राइट फ्रिंज एंड द फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज बोथ आर सेम। वन पॉइंट मोर आई वुड लाइक टू डिस्कस कि ये थीटा की अगर हम लोग बात करें तो एंगल थीटा को अगर बढ़ाया जाए तो इस फॉर्मूले से देखने पे आ रहा है कि जो फ्रिंज विड्थ होगी वो घटेगी, लेकिन हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं, लगभग अगर देखा जाए तो 1 डिग्री तक अगर हम इस एंगल थीटा को इंक्रीज कर दें तो ये फ्रिंजेस पतली होती चली जाएंगी, यहां से फ्रिंज विड्थ जो है वो घटती चली जाएगी, और ऑलमोस्ट जैसे ही थीटा 1 डिग्री पे पहुंचेगा इंटरफेरेंस का ये जो पैटर्न बन रहा था वो गायब। सिमिलरली अगर मान लें हम लोग कि इसको कम करते जा रहे हैं एंगल थीटा को, यानी एंगल ऑफ वेज को हम क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो जैसे ही ये कम करेंगे हम तो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। दैट मींस फ्रिंज विड्थ हमारी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के साथ साथ जैसे ही हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एंगल आप देख रहे हैं जो थीटा बनेगा बहुत कम हो जाएगा, 0 ऑलमोस्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये 0 होगा this fringe width becomes infinite, that means the interference pattern will disappear. So the whole theory, or we can say the whole thing of this wedge shaped interference pattern lies in between 0 to 1. If this angle becomes 0, the both are. So this was all about interference in wedge shaped thin film. In our next lecture, I would like to go through with the Newton's ring topic. Thanks a lot. Keep watching for our next lecture.